A very good morning to all of you students. Today we are going to revise chapter 7, The Necklace of Footprint Without Feet. So students, this is a story of a middle class lady whose name was Matilda Loisel. She was born in a poor family and was married to a clerk whose name was Mr. Loisel. Matilda was a very pretty young lady, but she was dissatisfied with the poverty of her family. She wanted to have the luxuries in her life. She hated her own humble surroundings and spent her time dreaming about a fancy and luxurious life. She borrowed a necklace from her friend, Ma'am Forestier, and lost it in the ballmaze party. She decided to replace it by a necklace that looked similar to it. It is costed her a fortune, and they had to live in a miserable condition to repay the loan they took to buy it. It is a tale of how her desire to have more led to her ruin. Now, I am telling you some characters which are used in this chapter. So, first is Matilda Loisel. Matilda Loisel is a pretty young woman who is married to a clerk. She is dissatisfied with what she has. She is always lost in her dreams of wealth and pleasure. Next is Mr. Loisel. Mr. Loisel is the husband of Matilda and is an ordinary clerk. He always tries to please his wife as he is a caring man. Next one is Madame Forestier. She is a good friend of Matilda. She is helpful and considerate. She lends Matilda a necklace that leads to her ruin. So now students, we are going to discuss the summary of this chapter. First point is Matilda Loisel and her happiness. जो मैडम लोइजल हैं और उनकी जो हैप्पीनेस है उसका जो रीज़न है वो क्या है. मेटिल्डा लोइजल, a middle class lady, desperately wished she were wealthy. She was very pretty and charming, but had the bad luck to be born into a family of clerks and married to another clerk, Mr. Loisel. Her husband worked as a clerk in the office of the Board of Education. Matilda was simple, but she was unhappy. She was so convinced that she is meant to be rich that she detested her life and spent all day dreaming and despairing about the fabulous life that she was not having. जो मेटिल्डा लोइजल है वो एक मिडिल क्लास लेडी ही थी. डेस्पेरेटली विश्ड शी वर वेल्दी, और उनकी जो विश थी वो क्या थी कि वो वेल्दी थी. शी वॉज वेरी प्रेटी, बहुत ज़्यादा प्रेटी थी, चार्मिंग थी, बट हैड द बैड लक, किंतु उसका जो बुरा जो लक था टू बी बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लास, वो ये था कि वो जो उसका जब उसका जन्म हुआ तो वो किस फैमिली में से बिलोंग करती थी, फैमिली ऑफ क्लर्क. एंड मैरिड टू, और उसकी शादी भी दूसरे क्लर्क से हुई, हुज नेम वॉज मिस्टर लोइजल. हर हस्बैंड वर्कड एज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. मैटिल्डा वॉज सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, किंतु वो खुश नहीं थी. शी वॉज सो कन्विंस्ड दैट शी इज़ मीन टू बी रिच, और वो बहुत ज़्यादा कन्विंस की गई दैट शी इज़ मीन टू बी रिच, कि उसका मतलब किससे है, रिच से, अमीर होने से. दैट शी डिटेस्टेड हर लाइफ एंड स्पेंट ऑल डे ड्रीमिंग. इसी वजह से उसकी जो इच्छा थी वो क्या थी कि वो एक रिच फैमिली में या तो उसका जन्म होता
या मैरिज होती रिच फैमिली से, तो इस वजह से वो पूरे दिन में सपने देखती रहती अबाउट द फैबुलस लाइफ के बारे में दैट शी वॉज नॉट हैविंग, जो अब उसके पास नहीं थी। नेक्स्ट वन इज मैम लोइजल ब्रिंग्स एन इन्विटेशन। मैम लोइजल के पास जो इन्विटेशन आया, मिस्टर लोइजल के पास एक इन्विटेशन लेके आते हैं वो। वन डे मिस्टर लोइजल ब्रॉट एन इन्विटेशन टू ए फैंसी बॉल मीन्स पार्टी organized by his boss, the Minister of Education. Mr. Loisel thought that her wife would be delighted to read the invitation, but she was not delighted to see the invitation. She told her husband that she did not have a good dress to wear to that occasion and asked him to give the invitation to his friend. Her husband, Mr. Loisel, told her that she could buy a new dress. He had saved 400 francs means currency, to buy a gun to join some hunting parties. He said that he would give that money to her for buying a new dress. एक दिन मिस्टर जो लोइजल थे वो लेकर आए इनविटेशन को टू अ फैंसी बॉल, एक बॉल मीन्स पार्टी के लिए जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी उनके बॉस के द्वारा, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिस्टर लोइजल थॉट, उन्होंने सोचा, दैट हर वाइफ, कि उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी उनके जो इनविटेशन है उनको पढ़कर। बट शी वॉज नॉट डिलाइटेड, किंतु वो खुश नहीं हुई टू सी द इनविटेशन को देखकर। शी टोल्ड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा, दैट शी डिड नॉट हैव अ गुड ड्रेस, कि उसके पास एक अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए उस ओकेज़न पर। एंड आस्क्ड हिम टू गिव द इनविटेशन, और उसने यह भी कहा कि जो इनविटेशन है वो उसके फ्रेंड को दे दे। हर हस्बैंड, उनका जो हस्बैंड थे मिस्टर लोइजल, टोल्ड हर, ने उन्हें बताया कि वो एक न्यू ड्रेस खरीद ले। ही हैड सेव्ड 400 फ्रैंक्स, उन्होंने सेव किए हैं 400 फ्रैंक्स मीन्स करेंसी, टू बाय अ गन, कि एक गन खरीदने के लिए ताकि वो हंटिंग जो पार्टीज़ हैं उनको ज्वाइन कर सकें। ही सेड दैट ही वुड गिव दैट मनी टू हर फॉर बाइंग अ न्यू ड्रेस, और उन्होंने यह बताया कि वो जो मनी जो उन्होंने सेव कर रखी है वो उसे दे देंगे ताकि वो एक न्यू ड्रेस परचेज कर लें। नेक्स्ट वन इज मैटिल्डा गेट्स नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर। जो मैटिल्डा है वो प्राप्त करती है नेकलेस, वो लेकर आती है अपनी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर उनसे। मैटिल्डा bought a new dress but she was not happy. Her husband asked the reason of her sadness. She said that she would not go for the ball as she did not have jewelry to wear with the dress. He replied that she should wear some natural flowers, but she was not convinced. Then he advised her to borrow it from her friend, Madame Forestier. Next day, she went to her friend's house and borrowed a necklace for the ball. जो मैटिल्डा है वो एक न्यू ड्रेस लेकर आई, बट शी वॉज नॉट हैप्पी, किंतु वो खुश नहीं थी। उनके जो हस्बैंड थे आस्क्ड द रीज़न ऑफ हर सैडनेस, उनके दुख होने का रीज़न पूछा। शी सेड दैट, तो उसने कहा, शी वुड नॉट गो फॉर द बॉल, कि वो पार्टी में नहीं जाएगी, एज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी टू वियर, क्योंकि उनके पास उस ड्रेस के साथ में डालने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है। ही रिप्लाइड दैट शी शुड वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ नेचुरल जो फ्लावर्स हैं उनको यूज़ कर ले। बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, किंतु वो नहीं मानी। देन ही एडवाइज हर टू बोरो इट फ्रॉम अ नेकलेस फ्रॉम मैम फॉरेस्टियर, तो उसने एडवाइस दी अपनी वाइफ को कि उसे मैम फॉरेस्टियर के पास जाना चाहिए और जो नेकलेस है वो उससे लेकर आए। नेक्स्ट डे, अगले दिन,
शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने फ्रेंड के घर गई एंड बोरोड अ नेकलेस फॉर द बॉल, और पार्टी के लिए एक नेकलेस लेकर आई। नेक्स्ट पॉइंट इज मैटिल्डा एट द डे ऑफ बॉल। जो पार्टी के दिन मैटिल्डा जो थी वो कैसी लगी। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड, जो नाइट थी पार्टी की वो आई, एंड मैटिल्डा वॉज हैप्पी एट द ओकेज़न, और मैटिल्डा इस ओकेज़न पे बहुत ज़्यादा खुश थी। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन द ड्रेस, वो ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। एवरीवन लाइक्ड हर, सभी ने उसकी प्रशंसा की। एंड शी वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। शी एंड हर हस्बैंड, वह और उसके जो हस्बैंड थे, डिड नॉट लीव अंटिल 4 AM, उन्होंने 4 बजे तक पार्टी को लीव नहीं किया। देन दे कॉट अ कैब, फिर वो एक कैब ली उन्होंने और वो वापस अपने घर गए। नेक्स्ट इज द नेकलेस वॉज लॉस्ट, जो नेकलेस था वो गुम हो गया। व्हेन शी रिटर्न होम एंड वॉज चेंजिंग हर ड्रेस, मैटिल्डा वॉन्टेड टू सी हर ब्यूटी इन फाइनल व्यू बिफोर द मिरर। सडनली शी नोटिस दैट द नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। She was shocked to see that her necklace had got lost. She cried out and informed her husband that she had lost the necklace. Her husband searched for the necklace on every place where they went last night. He went to the police and the cab offices. He also put an advertisement in the newspapers, but the necklace was not found. So he advised her wife to write a letter to her friend telling her that she needed some time to get the necklace repaired. When she returned home, जब वो वापस आई घर पर, and was changing, और जब वो चेंज कर रही थी अपनी ड्रेस को, तो मैटिल्डा चाहती थी कि वो एक बार अपनी ब्यूटी, जो फाइनल जो ब्यूटी है वो देख ले मिरर के सामने। अचानक से उसे नोटिस किया कि जो नेकलेस था वो उसकी नेक पर नहीं था। शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हुई यह देखकर कि उसका जो नेकलेस है वो गुम हो गया था। शी क्राइड आउट, वो रोने लगी और उसने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया दैट शी हैड लॉस्ट दी नेकलेस। हर हस्बैंड सर्च्ड, उसके हस्बैंड ने नेकलेस को ढूंढा हर जगह पे जहाँ भी वो गए थे लास्ट नाइट को। ही वेंट टू द पुलिस ऑफिस गए, कैब ऑफिसेस गए। ही ऑल्सो पुट, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर में, किंतु नेकलेस कहीं भी नहीं मिला। सो ही एडवाइज हर वाइफ, इसलिए उसने अपनी वाइफ को एडवाइस दी कि वो एक लेटर लिखे अपनी फ्रेंड को, यह बताते हुए दैट शी नीडेड सम टाइम, कि हमें कुछ टाइम की ज़रूरत है, कि जो नेकलेस है उसका जो हुक है वो टूट गया है और उसके रिपेयर के लिए हमें कुछ टाइम की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज द ट्रूथ रिवेल्ड आउट, जो सच्चाई थी अब वो कैसे सामने आई। आफ्टर 10 years ऑल द डेब्ट्स वर फाइनली पेड। वन डे मैटिल्डा वॉज walking in the Champs-Élysées and saw Mame Forestier. She was looking charming and beautiful as she had looked 10 years before. Now all the debts were paid off. Matilda decided to tell the story to Mame Forestier about her necklace. At this, Mame Forestier informed her that it was a fake necklace and the cost of it was only 500 francs. After 10 years, 10 साल के बाद में, जब सभी जो भी उन्होंने नया नेकलेस लेने के लिए जो भी उधार किया था वो सभी कुछ उन्होंने चुका देने के बाद में, एक दिन जो मैटिल्डा है वो चैम्प्स एलिसी में घूम रही थी और उसने देखा मैम फॉरेस्टियर को। वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, जैसे कि वो 10 years पहले थी। नाउ क्योंकि अब सारा जो कर्जा था वो पे हो चुका था, अब मैटिल्डा ने डिसाइड किया कि जो भी स्टोरी थी, जो भी उसकी लाइफ तक नेकलेस गुम होने से और
आफ्टर 10 ईयर्स तक की जो भी स्टोरी थी वो मैम फॉरेस्टियर को बताएगी नेकलेस के बारे में। और इस समय मैम फॉरेस्टियर ने उनसे इन्फॉर्म किया कि जो उसका जो नेकलेस था वो कैसा था, फेक था, एंड द कॉस्ट ऑफ इट वॉज, और उसकी जो कॉस्ट थी वो केवल कितनी थी, 500 फ्रैंक्स। नाउ students, I am telling you some sentences which are highlight this chapter. So first is Matilda, an ordinary woman, unhappy with her monotonous simple life, dreams of grandeur all the time. Ma'am Loisel, Mr. Loisel, Matilda's husband, is satisfied with what he has. He is also happy being a clerk. Next, Loisels get invited to a ball at the Minister of Public Instruction's place. Next, Loisels thinks that his wife would be happy to know about the invitation to the ball. Matilda is displeased and refused to go as she does not have a dress to wear to the ball. Her husband offers to buy her a dress for 400 francs. Matilda buys a good dress but is still unhappy as she has no jewel to complement the beautiful dress. Next, her husband suggests to borrow jewels from her friend Ma'am Forestier. Next, Ma'am Forestier lends Matilda a diamond necklace. Matilda becomes a celebrity at the ball party as everyone admires her beauty. Unfortunately, the couple discovers the necklace is lost as they reach home. Mr. Loisel contacts the police cab offices, advertises to award the finder of the necklace, but to no avail. They decide to buy a new necklace to replace it. Mr. Loisel collects 1800 francs and they borrow 18,000 more to pay for the necklace. The couple spent 10 years to pay back the debt, working day and night, and something from dire poverty. 10 years of poverty and misery render them old and weary. Mr. Loisel meets Madame Forestier one day and narrates the story of the necklace. Madame Forestier informs her the necklace was worth just 500 francs. So students, I hope you must have understood the summary of this chapter. So students, watch and listen this video very carefully. Thank you so much.